چیپٹر 9 جو کہ چیپٹر 8 کا ہی پارٹ 2 ہے، میں غارت گر۔ ہاشم کاردار زمر کو شوق سے نکلنے میں چند لمحے لگے اور پھر ایک دم آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ اس کا نام کیسے لے سکتے ہو تم؟ وہ ان کے کزن ہیں، پھر جائیداد کے تنازع وہ فارس غازی کو اس میں پھنسا سکتے ہیں، ان سے ان کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں۔ اوکے سادی، بہت ہو گیا۔ ٹانگ پہ رکھی دوسری ٹانگ سیدھی کی اور درشتی سے کہتی آگے کو ہوئی، میں یہ ڈیفینس اسٹریٹجی بہت دفعہ کورٹ میں استعمال کر چکی ہوں۔ جب اپنے دفاع میں کوئی بات نہ ہو تو کسی تیسرے شخص پہ شک دلوا دو۔ مگر کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ سادی کی گردن نفی میں لی۔ کیا اس آڈیو اور ان تصاویر کا ہاشم کے کمپیوٹر سے ملنا ایسا ثبوت تھا جسے وہ پیش کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ پھر تم کیسے کسی پہ اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہو؟ فارس کے خلاف میری گواہی کو چھوڑو، ثبوت دو، اس کی گن، اس کے فنگرز پرنٹس۔ تم مجھے اس سے بڑے ثبوت یا کسی اور کے خلاف لا کر دو، یا ہاشم کے خلاف لا کر دو، میں تمہاری بات سنوں گی، مگر اس سے پہلے نہیں۔ تلخی سے بولتی وہ کھڑی ہو گئی۔ سادی نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تو آپ 2.5 سال سے ہماری بات اس لیے نہیں سن رہی تھی کیونکہ ہم ثبوت نہیں دے رہے۔ اگر مجھے جھوٹا کہنے کے بجائے کچھ کہتے تو میں سنتی۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ سر ہلا کر وہ کھڑا ہوا۔ چند لمحے دونوں آمنے سامنے کھڑے رہے۔ آخر بات پپو وہ ذرا جھجکا، مجھے کسی ایسے وکیل کا بتائیں جو ہم افورڈ بھی کر سکیں اور وہ ہمارے ساتھ مخلص بھی ہو فارس غازی کے لیے۔ اس کے سامنے اب وہ اسے ماموں کہنے سے دانستہ احتزاز برتنے لگا تھا۔ زمر نے سر جھٹکا، ذرا توقف کیا، تنے اعصاب ڈھیلے جیسے پڑے۔ خلجی صاحب سے مل لو، نمبر اور پتہ ٹیکسٹ کر دیتی۔ ان کے پہلے تاثر پہ مت جانا، اچھے وکیل ہیں۔ اور اتنا سینے پہ بازو لپیٹے وہ مڑ گئی۔ اسے پیچھے آنے کا نہیں کہا، چاہے تو وہ اندر آ جائے، چاہے تو نہ آئے۔ سادی یاسیت سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ 2.5 سال سے وہ بس اس کی پھپھو تھی، زمر نہیں۔ اگر ایک دفعہ صرف ایک دفعہ وہ شکوہ کر دے تو وہ اسے بتا دے گا، یا شاید نہیں بتائے گا۔ بس ایک دفعہ۔ جو زہر پی چکا ہوں تم ہی نے مجھے دیا، اب تم تو زندگی کی دعائیں مجھے نہ دو۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں فل آواز کے ساتھ ٹی وی چل رہا تھا۔ ندرت کبابوں کی ٹکیاں بناتی بڑی ڈش میں رکھتی جا رہی تھی، ساتھ ہی صوفے پہ پیر اوپر رکھ کے حنین موبائل پہ نمبر ملا رہی تھی، بار بار کال ملاتی پھر کاٹ دیتی۔ بالآخر اب ہمت کر ہلی، دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ پھر ندرت نے اسے کہتے سنا، کیا میں علیشا سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں حنین ہوں، ہے نا، پاکستان سے۔ وہ ذرا ہچکچا کر کہہ رہی تھی۔ علیشا میری میلز کا جواب نہیں دے رہی، وہ کدھر ہے؟ دراصل مجھے اس کو پیغام دینا تھا۔ وہ بہت دھیان سے دوسری طرف سے بات سننے لگی، بالکل چپ، خاموش اور ساکت، بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ مگر ہنا نے نہیں سنا، چپ بیٹھی رہی۔ سادی اندر آیا اور سلام کر کے ماں کے قریب صوفے پہ گر سا گیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ فارس سے ملے؟ وہ امی سے پوچھنے لگی۔ جی، اور امی پھپھو سے بھی۔ وہ دور خلا میں دیکھنا اپنی سوچ میں گم تھا۔ کیا وہ اب بھی تمہاری بات سننے کو تیار نہیں؟ ان کا قصور نہیں، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ تم سے بھی وہی رویہ ہے۔ چھوڑے امی۔ وہ چہرے پہ بشاشت واپس لاتے سیدھا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر چنے کی دال اور گوشت کے پسے مکسچر کو 3 انگلیوں میں اٹھانا چاہا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پہ چپت رسید کی۔ 1000 دفعہ کہا ہے مت کھایا کرو درمیان سے، بے برکتی ہوتی ہے۔ مگر ندرت کی ڈھیٹ اولاد کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ سادی نے مکسچر منہ میں رکھا اور چباتے ہوئے پھر سے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ حنین بدستور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفعتاً ان کو خیال آیا، سادی بیٹا، وہ مرکز کے فرنٹ پہ جو بیکری ہے نا، وہ لوگ جگہ خالی کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم اس کو کرائے پہ لے کر کوئی کام شروع کر دیں؟ آپ نے ابھی تو اسکول کی جاب ختم کی ہے اور آپ کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ خرچے بہت ہیں اور تمہاری تنخواہ سے وہ نہیں پورے ہوتے۔ میں آج کل یہی سوچ رہی ہوں، بیکری کی جگہ کافی بڑی ہے، کپڑوں کا بوتیک شروع کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر فارغ بیٹھی رہی تو زیادہ بیمار ہو جاؤں گی۔ سادی نے ایک نظر ان کے ہاتھ کو دیکھا جو مہارت سے کباب کو شکل دے رہے تھے۔ کچھ یاد کر کے وہ مسکرایا۔ آپ ریسٹورانٹ کھول لیں امی، کسی کو کھانا کھلانے سے پیارا احسان کیا ہوگا بھلا؟ ریسٹورانٹ؟ وہ سوچ میں الجھی۔ مگر پہلے کسی سے مشورہ کر لیجیے گا۔ کس سے کروں؟ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے 2 لوگوں سے مشورہ کر لیتے ہیں امی، ایک وہ جس نے اس کام میں فائدہ اٹھایا ہو اور ایک وہ جس نے اس میں نقصان اٹھایا ہو۔ پھر ہنا کو دیکھا جو ابھی تک شل بیٹھی تھی۔ کٹو بیگم، ریسٹورانٹ بننے سے تمہارے تو دن پھر جائیں گے۔ سادی نے اسے آواز دی۔ اس نے سفید پڑتا چہرہ اٹھایا۔ ہاشم بھائی سے بات ہو تو انہیں بتا دیجیے گا کہ اب علیشا کو ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں رہی۔ کچے کباب کا ٹکڑا اس کے حلق میں رہ گیا۔ وہ چونکا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کو جب پیسے چاہیے تھے تب انہوں نے نہیں دیے، پھر اس نے خود ہی حاصل کرنے چاہے۔
वो शौक के आलम में बोल रही थी। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करने की कोशिश की। वो कंप्यूटर्स में अच्छी थी और किस्मत में बुरी। सब गिरफ्तार हो गए। अब वो जेल में है एक लंबे अरसे के लिए। वो बेयकीन थी बिल्कुल हद तक। फिर एकदम उठकर अंदर चली गई। सादी अभी तक साकित व जामिद बैठा था। नुसरत अफसोस से कुछ कह रही थी मगर वो नहीं सुन रहा था। और फिर जब शौक उतरा तो हर तरफ तासुफ छा गया। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। कस्बे कारदार में मुलाजमों की चहल पहल जारी थी। सरमा की वो धुंध आमेज सुबह बाहर तक महदूद थी। अंदर सेंट्रल हीटिंग ने लाउंज को गर्मा रखा था। नई लड़की फियोना एक इंडोर गमले को पानी दे रही थी। गाहे बगाहे निगाह उठाकर औरंगजेब के कमरे की सिम भी देख ली थी, जहां दरवाजा अध खुला था और वो आईने के सामने खड़े तैयार होते दिखाई दे रहे थे। फियोना वहां से मुकम्मल मंजर नहीं देख सकती थी। आवाजें भी मध्यम थी, मगर झगड़े की आवाज बहरा भी समझ लेता है। वो तो सिर्फ जबान से नाशना थी। अगर अंदर झांको तो सामने काउच पे टांग जमाकर जवाहरात बैठी थी। सुलगती आंखें औरंगजेब की पुष्ट पे जमी थी। अगर तुम एक दफा शेरू की बात सुनकर अपने बेटे की सिफारिश मत करो मेरे सामने, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो तलखी से कहते हुए टाई की नोट बांध रहे थे। वो कितना हाइपर है तुम जानते हो। इस तरह का रवैया रखोगे तो वो घर छोड़कर चला जाएगा तो चला जाए। 2 दिन फुटपाथ पे रहना पड़ेगा तो कल आ जाएगी। अपने बाप को बेवकूफ बनाता है। अगर वो गया ना औरंगजेब तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। वो मुश्किल जब्त करके बोली थी। हर शय की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बेजा हिमायत ने उसको इस मुकाम पे ला खड़ा किया है। कॉलर झटक कर कोट पहना, तनफ्फुर भरी निगाह से आईने में पीछे नजर आती जवाहरात पे नजर डाली, जो फिर बाहर निकल गए। वो वहीं बैठी किलसती रह गई। लाउंज में वो लम्हे भर को रुके। नौशेर वो सीढ़ियों के विस्त में खड़ा था, खामोश फिक्रमंद सा। औरंगजेब ने उस पर नजर डाली और इतनी जल्द पलटाई कि जैसे कोई नागवार नजारा सामने हो। मुड़े, मैरी को आवाज दी और वापस कमरे में चले गए। फियोना जल्दी से पानी रखकर मैरी को बुलाने भागी। शेरू वहीं जीने पे बैठ गया, गर्दन झुका ली। ना पैसे हाथ में रहे ना रिश्ते। कितने दिन तक यूं ही बैठे रहोगे? शहरीन सरसरी सा पूछती। हाथ में कटे सेबों की प्लेट पकड़े इसके साथ जीने पे बैठी तो वो चौंका, फिर दोबारा सर झुका लिया। जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देते तो तुम उनसे माफी मांग लो ना। सिंपल। मुलाजमों की जबानी वो सब सुन चुकी थी। कितनी दफा मांग चुका हूँ, मगर जवाब में चीख चिल्लाकर मुझे दफान कर देते हैं। और हाशिम, उसने प्लेट से फल का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे और तुमने इसीलिए उसे एक दफा भी मुखातिब नहीं किया। खाओगे? साथ ही प्लेट बढ़ाई। नौशेरवा ने बेदिली से मुंह फेर लिया। अलबत्ता अब शहरीन से पहले की तरह बेजार नहीं रहता था। सिर्फ वही थी जिसने सारा किस्सा सुनने के बाद उससे हमदर्दी जताई थी और कहा था, भाई तुमने लालच में नहीं किया ना, एक एडवेंचर था ये, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? अब भी वो कंधे उचकाकर कह रही थी, यूं करो ऊपर जाओ और हाशिम से माफी मांग लो, बात खत्म। उसको सिर्फ तुम्हारी माफी का इंतजार है। वाकई? उसने बेचैनी से शहरीन को देखा। थप्पड़ फिर से याद आया। बेख्तियार गाल पे हाथ रखा। हाँ ना, वो तुमसे कभी खफा नहीं हो सकता। और मुझे अपना फोन दे जाओ। क्यों? वो फोन देते देते रुका। शहरीन ने मोबाइल पे देखा और उसके हाथ से उचक लिया। वक्त जाया मत करो, वो ऑफिस के लिए निकल ही ना जाए। अच्छा। वो फौरन ऊपर आया। थोड़ी देर इसके कमरे के बाहर रुका रहा। पीछे सीढ़ी पे बैठी शहरीन ने इसके मोबाइल से सादी का नंबर निकाला और अपने नंबर पे मुंतकिल किया। शेरू ने बगैर खटखटाए दरवाजा खुला। हाशिम ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा था। कोट अभी स्टैंड पे था और वो कफलिंग्स पहन रहा था। आहट पे गर्दन मोड़ी, उसे देखा और वापस कफलिंग पहनने लगा। आओ शेरू। अंदाज नॉर्मल था, ना गुस्सा ना प्यार। वह सर चुकाए लब काटता कदम कदम चलता करीब आया। ये दिन, इस दिन के बाद दोनों की पहली मुलाकात थी। ये सोशल बाइकाट इसके लिए बहुत संगीन साबित हुआ था। भाई अभी तक नाराज है मुझसे? निगाह उठाए उसने कहने की कोशिश की। निगाह उठाने की हिम्मत नहीं थी। हाशिम ने टाई गर्दन में डाली और आईने में देखते उसकी गिरह लगाने लगा। क्या मैं इसे माजरत समझूं? नौशेरवा ने बेचैनी से चेहरा उठाया। आई एम सॉरी भाई, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। मैं माजरत कबूल करता हूँ, भूल जाओ सब। टाई की गिरह बांधते हुए वो नहीं मुस्कुराया। आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? नहीं। इसने नॉट कॉलर सब दुरुस्त किए। स्टैंड से कोट उठाया और मुड़कर शेरू को संजीदा नजरों से देखा। नाराज नहीं हूँ, हैरान हूँ। इस पे नहीं कि मैं बेवकूफ कैसे बना। एतबार करने वाले धोखा खा जाते हैं। इस पे भी नहीं कि तुम एक क्रिमिनल जहन रखते हो, बल्कि सिर्फ इस पे कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? एडवेंचर करना चाह रहा था बस। नौशेरवा ने शर्मिंदगी व खिफत से गर्दन झुका दी। हाशिम ने कोट पहना और उसे देखते हुए बटन बंद किया।
तुम शेरू, मेरी एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे सब मामले संभाल सकता है। इसके कंधे पे सख्ती से हाथ जमाया। नौशेरवा ने शर्मिंदा चेहरा उठाया। तुम्हें पैसा चाहिए, तुम मेरे पास आओगे। तुम्हें कोई लड़की चाहिए, तुम मेरे पास आओगे। तुम्हें किसी की जान चाहिए, तुम मेरे पास आओगे। मगर तुम खुद कुछ नहीं करोगे, कभी भी नहीं, समझ आया? इसने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर कदरे झटका। वो जो कहा आपने कि काश वो सादी आपका भाई होता, वो एक अच्छा लड़का है, रिश्तों को पास करना जानता है, वो हमारा तीसरा भाई होता तो मुझे खुशी होती, मगर वो नहीं है। औरंगजेब कारदार के 2 ही बेटे हैं, मैं और तुम। तुम्हारी नज़र में मेरी कितनी अहमियत है मुझे वाकई नहीं मालूम, मगर मेरे लिए तुम और सोनिया बराबर हो। आपको पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना एहतराम करता हूँ आपका। नहीं, मुझे नहीं पता। परफ्यूम खुद पे छिड़कते संजीदगी से कंधे उचकाए। शेरू रूहांसा हो गया। ये सच है। फिर इसे साबित करो, क्योंकि मुझे दोबारा से तुम्हारे तखरीबी जहन पे एतबार करने में वक्त लगेगा। इसके कंधे को थपथपाकर वो मोबाइल उठाता बाहर निकल आया। अब भी नहीं मुस्कुराया। नौशेरवा परेशान सा वहीं खड़ा रह गया। शहरीन अब सीढ़ियों के विस में खड़ी थी, उसे आता देखकर रास्ता दिया। शेरू ये सब देखता रहा। हाशिम चंद जीने उतरा, फिर इसके करीब रुका। कुछ कागजात पे तुम्हारे दस्तखत चाहिए, दोपहर में ऑफिस आ जाना। मैं खुला ले रही हूँ, तलाक नहीं। चाहो तो ये लंबी चौड़ी रकम और मरात ना भी दो, जरूरत नहीं मुझे तुम्हारे पैसे की। वो बातें मत कहो जिनका मतलब तुम खुद भी नहीं जानती। जो दे रहा हूँ अपनी बेटी के लिए दे रहा हूँ, माँ से अलग नहीं कर सकता उसको। अब हटो सामने से। वो मजीद सिरकी और हाशिम नीचे उतर आया। वो तिल में लाते हुए उसे जाते देखती रही। आंखों में शदीद बुग़्ज़ और बेबसी थी। वो माँ बाप के कमरे के सामने रुका तो जवाहरात हनूस काउच पे बैठी किलस रही थी और ड्रेसर मिरर के सामने खड़े औरंगजेब मैरी एन जियो को हिदायत दे रहे थे। वो चौखट में आ रुका। मैं अलीशा की फीस पे कर रहा हूँ, किसी को कोई एतराज़ हो तब भी मुझे कुछ कहने की जहमत ना करे, मेरा दिमाग आजकल बहुत घुमा हुआ है। इत्तला दी और इसी संजीदा चेहरे के साथ मुड़ गया। जवाहरात तिल मिलाकर उठी। औरंगजेब ने उसे बरहमी से पुकारा, मगर वो बाहर जा चुका था। दोनों बेबसी से एक दूसरे को देखकर रह गए। बाहर धुंध अभी तक छाई थी। वो बरामदे तक पहुंचा था जब खावर तेजी से करीब आता दिखाई दिया। वो फिक्रमंद लग रहा था। सादी यूसुफ ने आपके किए वकील को फायर कर दिया है, मालूम है। आप इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? फिक्र की क्या बात है? वो उल्टा हैरान हुआ। लोग वकील बदलते रहते हैं, अगला भी हमारा ही होगा। नहीं तो जज हमारा ही है। मुझे परेशानी है उन लोगों को। वो ऑडियो कहाँ से मिली? कौन सी ऑडियो? वो ठटक कर रुका। खावर ने महमूद साहब से जो सुना था वो बता दिया। हाँ, जुमर ऐसे काम कर सकती है, वो कह रहा है तो ऐसा ही होगा। वो कार की तरफ जा रहा था। खावर तेजी से उसके पीछे लगा। क्या वाकई ऐसा ही है? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। हाशिम रुक कर उसे देखने लगा। आपने उसे और उसकी बहन को उस रात अपना लैपटॉप दिया था, कहीं उसने वो आपके पास से तो नहीं निकाली? ऐसा कुछ नहीं। वो बेजार हुआ। वो ऑडियो मेरे सेफ में है, मैंने 2 दिन पहले ही देखी है। लैपटॉप में मेरे डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर लॉक है। वो दोनों इतने भी स्मार्ट नहीं कि हर चीज़ खोल लें, और साथ ही झूठ नहीं बोलता। जो कह रहा है वही होगा। मगर जज हमारा है, फिर क्या मसला? सर आपका ओवर कॉन्फिडेंस। वो कहते कहते रुका। हाशिम ने एक सख्त काटदार नज़र उस पर डाली और आगे बढ़ गया। खावर ने बेचैनी से थोड़ी कुचाई। बज़ाहिर हाशिम ठीक कह रहा था, मगर फिर भी उसे ये लड़का कुछ गड़बड़ लग रहा था। खैर, हाशिम सादी को ज्यादा तौर पर जानता था। यकीनन वो सर झटकता आगे बढ़ गया। टूटे हुए मकान हैं मगर चांद से मकीन। इस शहर आरज़ू में एक ऐसी भी गली है। वो एक अबतर सा ऑफिस था। फाइलों के ढेर, बेतरतीब किताबों से भरे रैक और मेज पे बिखरा इतना कुछ कि इस सारे में कुर्सी पे बैठा सादी बेहद बेबसी महसूस कर रहा था। इसके मुकाबिल ऑफिस के मालिक की कुर्सी पे मौजूद अधेड़ उमर साहब नीचे झुके दराज से कुछ निकाल रहे थे। दफअतन वो सीधे हुए। वो उड़े उड़े खिचड़ी बालों, मोटी अनक और शरीफ चेहरे वाले इंसान थे। सादी को उन पे तरस, खुद पे रहम और जुमर पे गुस्सा आया जिसने उसे यहाँ भेजा था। सीधे होते ही उन्होंने कुछ फाइल धप से मेज पे रखी। नतीजतन ऊपर तले रखी सियाह किताबें धड़ाम से सादी की तरफ लुढ़की। वो करंट खाकर पीछे हुआ। एक मोटी किताब पैर पे जा लगी, बाकी 2 घुटनों पर। आउच! लगी तो नहीं? उन्होंने नाक पे ऐनक धकेलते पूछा। बिल्कुल नहीं जी, मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ, ये सिर्फ उसने सोचा। वो झुककर उनको समेटने लगा, फिर मेज पे रखी उसी बेचारगी से खिलजी साहब को देखा। सर आप बेशक अभी अपना काम कर लें, मैं फिर आ जाऊंगा। वो कुर्सी के किनारे पे आगे को हो गया, भागने को तैयार। नहीं नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। उन्होंने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। केस भी देख लिया था मैंने। तो फिर आप ये केस लेंगे? बेतवज्जी से पूछते पीछे अलमारी खड़ी
अलमारी पे नजर डाली। शीशे के दरवाजों के पीछे किताबें और फाइलें भरी थी, ऊपर तले अड़े उड़से हुए काफी कागजात, बेतरतीबी। देखो बेटे, फारिस खासी जैसे बंदे का दिफा करना आसान नहीं। खैर है, आप रहने दें, मैं कहीं और चला जाऊंगा। वो शुक्रिया कहता जल्दी से उठा। बस भागने की देर थी, ये इतना भी मरवत में बैठ गया, इस आदमी की तो ऐनक गुम हो जाए तो ये ढूंढ ना सके। फारिस को क्या खाक रिहा करवाएगा? मुझे पता है फारिस खासी का दिफा आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि वही कातिल है। तो नहीं, मेरा ख्याल है वो बेगुनाह है। वो जो बस मुड़ने ही वाला था एकदम ठहकर उन्हें देखने लगा। जी आना, गुनहगार का दफा करना ज्यादा आसान है, मगर बेगुनाह का केस सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक मासूम आदमी का तुम दिफा ना कर सके और वो जेल चला गया तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। वो आहिस्ता से दोबारा बैठा, आगे को झुककर हैरत और उलझन से उनको देखने लगा। आपको लगता है कि वो बेगुनाह है बावजूद प्रोसिक्यूटर जुमर के बयान के? प्रोसिक्यूटर साहब ने तो ये बयान देना ही था। उस सरकारे बनाम सज्जाद राव की प्रोसिक्यूटर जो रही। वैसे मुझे बड़ी हैरत है, तुम्हारे पीछे वकील ने इस केस का जिक्र नहीं किया। अभी निकाले फाइल्स के गट्ठे को इसकी तरफ धकेला। इससे कबल की किताबें दोबारा गिरती। सादी ने जल्दी से उसे वापस पुश किया, अलबत्ता वो इनके चेहरे से अपनी बेचैन नजरें नहीं हटा पा रहा था। ये कौन सा केस था? ये वारिस खाजी कत्ल से कोई 5 माह पहले खत्म हुआ था। मैं इसमें डिफेंस अटॉर्नी था और जुमर साहिबा प्रोसिक्यूटर। एक आदमी ने अपनी बीवी पे गोली चलाई, मगर ऐसा करने से कबल उसके सामने एतराफ किया इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का, इसके साथ मजीद कुछ ज्यादा करने का। किस्मत से बीवी बच गई और उसने पुलिस को बता दिया। 7 माह जुमर लगी रही। ये उनका पहला केस था। रेपो भी बनानी थी। बहरहाल फैसला उन्हीं के हक में गया। मेरा ख्याल है जिसने भी फारिस के भाई और बीवी का कत्ल किया है उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस पे गहरी नजर होगी। उसे मालूम होगा कि इंसान अपनी जबान से कही बात में सबसे अच्छा फंसता है। प्रोसिक्यूटर साहबा वैसे बहुत समझदार खातून है, लेकिन वो यहाँ मार खा गई, क्योंकि वो इसी तरह का एक केस प्रोसिक्यूट कर चुकी हैं। यानी जुमर अपने हमले आवर की कॉल पे इसलिए यकीन कर रही हैं कि वो आखिरी मिनट के एतराफ के ऐसे ही केस को ले चुकी हैं। उनके नजदीक ये मुमकिन है कि कोई ऐसा करे। एकदम उसे महसूस हुआ कि जुमर ने उसे सही बंदे के पास भेजा है। उनके पहले तासुर पे मत जाना। बिल्कुल, वैसे लोग ये करते भी हैं। कत्ल बड़ा बोझ होता है, उन्हें किसी से तो बांटना होता है। बहुत से केसेस देखने हैं मैंने जहां लोग किसी को मारने से पहले अपने पिछले गुनाहों का एतराफ कर लेते हैं। मुझे पता है ये सब किसने करवाया है। वो एकदम जोश में बोलने लगा तो उन्होंने फौरन हाथ उठाकर रोका। वो बेख्तियार रुक गया। क्या वो लोग ताकतवर हैं? बहुत ज्यादा। उसके गले में कुछ चटका। और क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी जानता है कि वो ये असल कातिल है? नहीं। तो फिर अपना मुंह सी लो। जी एकदम दम बखुद सा रह गया। देखो बच्चे, तुम एक बासर आदमी को इसमें नहीं घसीट सकते। ऐसा करो तो फारिस को जेल में खत्म करवा देंगे वो लोग, और तुम्हें जेल से बाहर तुम जिसको भी उनके नाम बताओगे उनकी जिंदगी खतरे में डालोगे। तुम उनको गुनहगार साबित मत करो, सिर्फ फारिस को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करो। एक दफा वो बाहर आ जाए, फिर जो करना हो कर लेना। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर सर खुद असबात में हिला दिया। बात गलत नहीं थी। क्या हम उनको रिहा करवा लेंगे? अगर जज ईमानदार हुआ तो हाँ। और इतने दिनों में ये पहली उम्मीद की किरण थी जो इसे नजर आई थी। अंधेरी रात का पहला तारा जो सूरज निकलने की नवेद होता है। हाँ, कभी तो सुबह होगी। वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। जिसको देखो इसके चेहरे पे लकीरें सोच की, जैसे हो जाए मुकद्दर किसी शय का मुकद्दर सोचना। सादी कोर्ट से वापस अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था जब किसी अजनबी नंबर से फोन आने लगा। उसने ड्राइव करते हुए कॉल ले ली। सादी, जी कौन? शहरीन बोल रही हूँ। उसने मोबाइल कान से हटाकर उसे घूरा। कहिए, कैसे फोन किया मिसेस कारदार? क्या हम मिल सकते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ मेरे और तुम्हारे घर वालों को इल्म ना हो? जहाँ तक मुझे याद है मैं 23 साल का हूँ और आप कम से कम मुझसे 12 साल बड़ी हैं। तो ओ शट अप, मुझे तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाना। तुमसे एक काम है, मगर हाशिम को पता ना चले फिर ठीक है। पता टेक्स्ट करता हूँ, दोपहर में आ जाइएगा। अपनी हैरत छुपाते उसने फोन कान से हटाया। अरसा पहले शहरीन ने उससे सुलह कर ली थी। उसको तब से मालूम था कि एक दिन ये लड़का इसके काम आएगा, और वो दिन आन पहुंचा था। जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। कुछ देर बाद वो सारा के ऑफिस में मौजूद था। वो कुर्सी पे विराजमान हाथ में पकड़े कागज को पढ़ रही थी। फिर चेहरा उठाया और तहम्मुल से उसे देखा। कि तुम्हारी इस हफ्ते में ली जाने वाली दूसरी लीव है। अगर मैं ये दे दूं तो ऑफिस के बाकी लोग क्या ख्याल करेंगे? मुझे फारिस मामू के केस के लिए कुछ अहम काम करने हैं। वो इतवार को नहीं हो सकते क्या? सादी ने मासूमियत से नफी में लाया। इतवार को पाकिस्तान में छुट्टी होती है। सारा ने समझने वाले अंदाज में उसे घूरा, फिर कुर्सी की समत इशारा किया। वो बैठ गया।
तुम्हें इतने अहम इदारे में बतौर एक साइंसदान काम कर रहे हो तो अपनी डिग्री की वजह से, मगर यहाँ सब जानते हैं कि तुम मेरे भांजे हो। अगर इसी तरह मैं तुम्हें फेवर देने लगी तो तुम यहाँ अपनी इज्जत खो दोगे। पहले तासुर दायमी होते हैं सादी, मगर सच नहीं होते। वो उदासी से मुस्कुराया। खैर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बस आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। तंबीही नजरों से उसे देखकर सारा ने दरख्वास्त पे दस्तखत किए, फिर कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। आप कैसी हैं? बहुत दिन से काम के अलावा आपसे कोई बात नहीं हो सकी। उसने देखा सारा के चेहरे पे मलाल भरी मुस्कुराहट बिखर गई। नीली आंखों पे नरम चेहरे वाली सारा अब भी पहले की तरह लगती थी, मगर बस सिर्फ लगती ही थी। एक थकान, उदासी, ना उम्मीदी उसकी आंखों में आकर ठहर गई थी। अल्लाह का शुक्र है, मैं, अम्मी, बच्चियां, हम सब एक दूसरे को संभाले हुए हैं। जरा तौक़ुफ़ किया। फारिस कैसा है? बेगुनाह आदमी कैद में रहकर कैसा हो सकता है? बस और गम और गुस्से से निढाल। मगर हम इन्हें जल्द रिहा करवा लेंगे और असल कातलों को सजा दिलवाएंगे। इससे क्या होगा सादी? वारिस वापस तो नहीं आएगा। और वो इसकी इसी फिक्र का इंतजार कर रहा था कि एडवोकेट खिलजी से मुलाकात के बाद उसको इस सवाल का जवाब मिल गया था। हम कातिल को सजा मकतूल को वापस लाने के लिए ही नहीं देते, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि वो किसी और को कत्ल ना करे। खसास में जिंदगी होती है, मकतूल की नहीं बल्कि किसी और की, आपकी, आपके बच्चों की, फारिस गाजी की, या शायद मेरी अपनी। आपके सारा ने आंखें सुखेड़ कर गौर से उसे देखा। कुर्सी पे पीछे को हुई, हाथों में कलम घुमाते हुए कुछ सोचा। तुम्हारा अंदाज पुरस्रार होता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं जाऊं? और वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। ये आखिरी दफा है सादी यूसुफ खान। इसने दरख्वास्त की तरफ खफगी से इशारा किया। जी बिल्कुल, इस हफ्ते में आखिरी दफा। कागज उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। सारा ना चाहते हुए भी हंस पड़ी और फिर सर झटककर कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जह हो गई। और जिस वक्त वो वहां से निकल रहा था, इसी शहर में कई मील दूर हाशिम अपने ऑफिस में मौजूद फोन पे कह रहा था, कैसी हो बच्चे, तुम्हारा फिर से शुक्रिया। अपने लाउंज में सोफे के साथ खड़ी लैंडलाइन फोन का रिसीवर कान से लगाए होना उदासी से मुस्कुराई। इट्स ओके हाशिम भाई, वैसे शेरू भाई ने वो वीडियो शूट कहाँ की थी? इसका एक कॉटेज है अयूबिया में, वहीं पे। खैर, फारिस का केस कैसा जा रहा है? इस ऑडियो से कोई फर्क पड़ा या नहीं? भाई तो कह रहा है कि फर्क पड़ेगा। वैसे वो कहाँ से मिली ऑडियो? बज़ाहिर सरसरी से पूछा। ज़ुमर पप्पो ने निकलवा कर दी थी, मगर ये बात आपको किसी को बतानी नहीं है, ये फैमिली सीक्रेट है, इसने मदम से कहा। वही जो भाई ने बताया था। ज़ुमर पप्पो को भी नहीं बताइएगा कि मैंने बता दिया है। ये भी कोई कहने की बात है क्या? वो उल्टा हैरान हुआ। इस यकीन दहानी पे वो मुस्कुरा दी। हाशिम भाई आप बहुत अच्छे हैं, मालूम नहीं। खैर, तुम्हें एक काम कहा था। हुनैन की मुस्कुराहट सिमटती गई, आंखों में गहरा गर्व छाने लगा अलीशा को, और जो सुना था बता दी गई। वो दूसरी जानिब बिल्कुल खामोशी से सुनता गया, यहाँ तक कि हुनैन को लगा वो मौजूद ही नहीं है। हाशिम भाई कुछ तो बोलें। वो चुप रहा, बिल्कुल चुप। हुना का दिल डूबने लगा, जैसे नीले पानियों में बहरी जहाज डूब जाता हो। क्या आप इतना भी नहीं कहेंगे कि आपको अफसोस है? क्या आपको जरा सा भी अफसोस नहीं? इसकी आवाज़ भर आ गई, मगर हाशिम ने फ़ोन रख दिया। इस दिन के बाद से वो हना के लिए एफिल टावर बन गया। क्योंकि इसने चंद मिनट इंतजार किया कि वो कॉल बैक करेगा, मगर नहीं, कोई कॉल नहीं आई। उसे नहीं मालूम था कि अब अगले 1.5 साल वो इससे सिवाय दूर दूर से खानदानी तकरीबात में मिलने के बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। और ये भी कि वो दोबारा हाशिम से फ़ोन पे बात 1.5 साल बाद तब करेगी जब वो इम्तिहानी मरकज़ में चीटिंग करते पकड़ी जाएगी। अगर हम सब का हम नजूमी होते तो ज़िंदगी का सारा थ्रिल ही ख़त्म हो जाता। खुद को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं यार लोग, हालांकि इससे फ़र्क तो पड़ता नहीं कोई। छोटे बागीचे वाले घर से कदरे फासले पे मेन रोड पे मौजूद वो शॉप उस वक्त रेनोवेशन के मरहले से गुजर रही थी। अंदर मिस्त्री मजदूर लगे थे। पेंट की महक, लकड़ी और सीमेंट का जाबजा बिखरा हुआ चीज़ों की अटापटा। नुदरत इस शॉप को छोटा सा रेस्टोरेंट बनाने की तैयारियों पे निगरानी कर रही थी। साथ ही गाहे बगाहे कोने में रखी मेज़ की जानिब भी देख लेती, जो आज 1.5 साल बाद रेस्टोरेंट के मरकजी सिटिंग एरिया में शामिल थी, जहाँ सादी के साथ हाशिम की बीवी बैठी थी और वो खामोशी से उसको सुन रहा था। नुदरत इस तरफ नहीं गई थी। सादी ने बताया कि फारिस के केस के सिलसिले में उसे शहरीन से कोई काम था। तफसील को रहने दें, और नुदरत ने फिर पूछा नहीं। शहरीन हाथ बाहम फंसाए वक्फे वक्फे से शाने झटक कर और अबरू उचका कर मधम बोल रही थी। मुझे नहीं मालूम आप हाशिम भाई से इतनी आजिज हैं। इतनी देर से बता रही हूँ किस तरह वो मुझ पर टॉर्चर करता है, शक करता है, मारता है। अब भी तुम्हें लगता है कि मुझे आजिज नहीं आना चाहिए? नागवारी से चटक कर बोली सादी ने हल्के से शाने उचकाए। तो अब क्या आप उनसे इंतकाम लेना चाहती हैं? वो भी लूंगी, अपने ऊपर किए गए एक एक जुल्म का हिसाब लूंगी, लेकिन अभी मैं किसी और काम के लिए आई हूँ।
میں ہاشم بھائی کا دوست ہوں، ان کے خلاف آپ میری مدد لیں گی؟ اتنا اعتبار کیسے ہے مجھ پہ؟ میرے تمام آپشنز میں تم سب سے زیادہ بھروسے قابل لگے مجھے۔ کسی پروفیشنل کو ہائر کیا تو وہ ہاشم کو بتا دے گا یا مجھے بلیک میل کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ سے کچھ غلط ہوا ہے۔ اس نے جوس کا گھٹ بھرتے غور سے شہرین کو دیکھا۔ اس کا رنگ بدلا ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے جس میں مجھے ہاشم پھنسا سکتا ہے۔ اب تک تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اور اندازہ تو سادی کو ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے اتنی لمبی رام کہانی صرف اس لیے سنائی تاکہ وہ جو آگے بتانے جا رہی ہے اس میں وہ خود بے قصور لگے۔ خیر، وہ سنتا گیا۔ ہماری طلاق کے بعد بچی کی کسٹڈی مجھے چاہیے اور مجھے ہی ملے گی، لیکن اگر ہاشم کو میرے بارے میں کچھ بھی برا معلوم ہوا تو وہ سونی کو مجھ سے چھین لے گا۔ میرے کزن والی بات پرانی ہو گئی اور دب گئی۔ اب ایک اور مسئلہ ہے۔ کہتے کہتے وہ ذرا رکی، بالوں میں ہاتھ پھیرا، انگلیاں مروڑی۔ آپ سے کیا ہوا؟ گولف کلب میں کچھ عورتیں کارڈز کھیلتی ہیں، آئی سوئر میں ان میں شامل نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے وہ صرف ایک کارڈز گیم تھا، مگر میں نے کافی کچھ لوز کر دیا اس میں۔ اوکے، پھر ان کے پاس کوئی رجسٹر، کوئی کمپیوٹر کارڈ کچھ نہیں ہوتا؟ میں نے سارا روپیہ بعد میں پورا کر دیا، مگر اسی شام کی CCTV فوٹیج ان کے کمپیوٹرز میں، اور اگر کلب میں کبھی کسی نے وہ ہاشم کو دے دی، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرتے، مگر میں رسک نہیں لینا چاہتی۔ ہاشم کو نہیں معلوم میں کتنی بڑی رقم ہاری تھی۔ اس کو رقم سے فرق نہیں پڑتا، مگر ہاشم کاردار کی بیوی گیمبلنگ کرتے ہوئے دکھائی دے، یہ ایک اسکینڈل ہے۔ اس کی کتنی بدنامی ہوگی، اور کوئی بھی اسکینڈل مجھے میری بچی کی شکل دیکھنے سے عمر محروم کر سکتا ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ تم اور تمہاری بہن ان چیزوں میں اچھے ہو۔ کلب کے ریکارڈ سے اس دن کی فوٹیج غائب کر دو، میں تمہیں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں۔ اپنی بہن کو ایسے کلب میں لے کر نہیں جانے والا، سو میری بہن کا نام آئندہ اس معاملے میں نہیں لیں گی آپ۔ وہ متعجب ہوئی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ بے فکر ہو جائے۔ ویسے ہاشم بھائی جیسے شاطر آدمی کو دھوکہ کیسے دے لیتی ہیں آپ؟ ہر شخص کی ایک کمزوری ہوتی ہے، اس کی بھی ہے۔ اسے لگتا ہے جن لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، جیسے اس کی فیملی، جیسے کبھی میں تھی، اور جیسے اب تم ہو۔ وہ تم سے سچ میں بہت محبت کرتا ہے، کہتا نہیں ہے، مگر اسے تم شیرو کی طرح ہی پیارے ہو۔ سادی نے ہوں سر جھٹکا۔ شہرین گہری سانس بھر کے پیچھے کو ہو بیٹھی، چہرے پہ آئے بال پرے ہٹائے۔ اور تم جواب میں کیا لوگے؟ آپ کو ہاشم بھائی سے ان کے تمام ظلم و ستم کا بدلہ لینا ہے نا؟ تو بس اس وقت کا انتظار کریں جب ہم مل کر یہ کام کر سکیں۔ شہرین نے الجھ کر اسے دیکھا۔ تم تو ہاشم کے دوست ہو، ایسا کیا ہوا تم دونوں کے درمیان؟ وہ مسکراتے ہوئے کرسی دھکیلتا اٹھا۔ آپ کے برعکس میرے آپشنز میں سب سے کم قابل اعتبار آپ ہیں۔ شہرین نے شانے اچکائے۔ وہ سادی کی ہر بات سننے پہ مجبور تھی۔ گئے تھے زوم میں اپنے، پر اس کو دیکھتے ہی جو دل نے ہم سے کہے تھے پیام بھول گئے۔ یہ سرما کی ایسی سرد دوپہر تھی جب ذرا سی دھوپ روح تک کٹکور بخشتی۔ ایسے میں عدالت کی عمارت کے گرد کوہر کے دائرے میں دھوپ چھید کر کے چوری چھپے داخل ہو گئی تھی، مگر کمرہ عدالت کے اندر شکوک شبہات نے ہنوز سب دھندلا رکھا تھا۔ جسٹس سکندر بغور وکیل دفاع خلجی صاحب کو بولتے سن رہے تھے، جو کٹہرے میں کھڑی زمر سے سوال کر رہے تھے۔ سامنے حاضرین کی چند کرسیاں رکھی تھیں، بمشکل 1.5 قطار بھر کرسیاں، جو اس ٹی وی اور فلم سے یکسر مختلف اور بدصورت کورٹ روم کو مزید بدنما دکھا رہی تھیں۔ کمرے سے باہر کچہری میں پھرتے بھانت بھانت کے لوگوں کا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا، مگر وہ سب زمر کو سن رہے تھے، سادی خاموشی سے اور فارس اور ناگواری سے۔ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ فارس کی تیوری چڑھی تھی، آنکھوں میں زمر کو دیکھتے دبا دبا غصہ تھا۔ سفید کرتے کے کاف کلائی پہ موڑ رکھے تھے اور بال پونی میں بندھے تھے، البتہ سادی بالکل چپ چاپ تھا، ریشم بننے کے بعد کا نرم مگر بے لچک سا۔ زمر بھی اتنی ہی بے لچک لگ رہی تھی، سفید لمبی قمیض، اوپر بلیک منی کوٹ، دوپٹہ شانوں پہ اور اعتماد سے اٹھی گردن۔ وہ زمر ہی لگ رہی تھی اور صرف خلجی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ آپ دیکھ چکی ہیں کہ کس طرح ابھی ایک ایکسپرٹ وٹنس ماہر گواہ نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اس ریکارڈنگ میں موجود فارس غازی کی آواز اصلی نہیں ہے۔ الفاظ وہی ہیں جو میں نے سنے تھے۔ ریکارڈنگ کے بارے میں عدالت درست فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ریکارڈنگ سے اصل آواز نکل کر جعلی ڈالی گئی ہو تاکہ عدالت میں اپنی مرضی کی بات ثابت کی جا سکے۔ آفٹر آل اس ریکارڈنگ کا سورس غیر تصدیق شدہ ہے۔ ذرا سے شانے اچکائے۔ یہ فیصلہ عدالت میں چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ خلجی صاحب نے اس کو بے اختیار ٹوکا، پھر کٹہرے کے مزید قریب آئے۔ کیا آپ اب بھی اپنے بیان پہ قائم ہیں؟ جو جس طرح ہوا، جو میں نے سنا، میں نے کورٹ اور پولیس کو بتا دیا۔ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں۔ وہ بے تاثر اور مطمئن کھڑی تھی۔ اور جب آپ نے سن لیا تھا کہ ایک شخص آپ کو قتل کرنے جا رہا ہے تو آپ بھاگی کیوں نہیں؟ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، میرا رشتہ دار تھا، مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ مجھے مارے گا۔ میں اسے خالی دھمکی سمجھی تھی، مگر بعد میں آپ کو یقین آ گیا۔ مجھے 3 گولیاں لگی تھی، میرے سامنے ایک لڑکی قتل ہوئی،
क्या यकीन नहीं आना चाहिए था? वो पुरसुकून ठंडे अंदाज में जवाब दे रही थी। यानी आप मानती हैं कि आपने उस वक्त गोली मारने वाले की बात को गलत जज किया और ना भागकर गलती की? भागकर कहाँ जाती? सारा रेस्टोरेंट तो ओपन था और इसके पास स्नाइपर गन थी। एक काटदार नजर सामने बैठे फारिस पे डाली। वो उसे ही देख रहा था चुपती हुई नजरों से और वापस खिलजी साहब को देखा। उसने ऐसी जगह मुंतखब की थी जहाँ भागने का कोई फायदा न था। खिलजी साहब ने हाथ में पकड़े कागजात पे नजर डाली, फिर सर उठाकर उसे देखा। जुमर साहिबा, आप कब से प्रोसिक्यूटर हैं? मेरा ख्याल है आपके कागज और दिमाग दोनों में तारीख दर्ज होगी। बहरहाल 3.5 साल से। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने जवाबात को मुख्तसर रखिए। फिर आपको चाहिए कि आप मुझसे डब्ल्यू क्वेश्चंस ना पूछें, यानी कि क्या, क्यों, कब, कहाँ वाले सवाल। खिलजी साहब ने असर लिए बिना कागजात को फिर से देखा। 2 उंगलियों से कान की लौ मसलता फारिस आंखें सुकड़े उसे देख रहा था। क्या ये दुरुस्त है कि आप अपने जूनियर्स में एक सख्त गिर प्रोसिक्यूटर के तौर पे मशहूर है? बिल्कुल, और कैसा होना चाहिए प्रोसिक्यूटर को? इसने गर्दन अकड़ाई। वो फारिस को नहीं देख रही थी। जुमर साहब, आप जानती हैं कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए कानून के तहत हम फारिस गाजी को प्रिज्यूम्ड इनोसेंट कहेंगे, मुजरिम नहीं। गो कि आप उसे मुजरिम ही ख्याल करती हैं। बिल्कुल, सर इस बात में हिलाया। फारिस ने हूं सर चटका। और जुमर, जब आप किसी को प्रोसिक्यूट करती हैं तो उसको मुजरिम गर्दान कर ही ऐसा करती हैं, दुरुस्त? सबूत और शवाहिद इसके खिलाफ हों तो हाँ। वो ठंडी और पुरसुकून थी। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने जवाबात को हाँ या ना तक महदूद रखें। ये सवाल पे मुनसिर है। खिलजी साहब ने जब से गहरी सांस ली, फिर इसके सामने आ खड़े हुए कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। पिछले 3.5 साल में आपके प्रोसिक्यूट किए गए केसेस में से कत्ल के 16 मुकदमे ऐसे हैं जिनके फैसले आ चुके हैं। जी, और इनमें से 7 फैसले दिफा के हक में हैं। यानी कि 16 दफा आपने कहा ये शख्स कातिल है, 9 दफा अदालत ने कहा कि हाँ ये कातिल है, मगर 7 दफा अदालत ने कहा कि ये कातिल नहीं है। 7 दफा शवाहिद और गवाहियां इतनी मजबूत थीं कि फैसला मुतसी करने लगी, मगर हाँ या नहीं। जुमर साहिबा कदरे बुलंद आवाज से याद दहानी करवाई। जुमर ने गहरी सांस भरी। जी हाँ, यानी कि 7 दफा आप गलत साबित हुई। 16 में से 7 उंगलियों पे गिना, तकरीबन 50% तनासुब निकलता है। यानी आपने 7 लोगों को फांसी की तरफ ले जाना चाहा, मगर अदालत ने उन्हें बेगुनाह करार दे दिया। इस तनासुब से आप जितने लोगों को कसूरवार ठहराती हैं उनमें से आधे तो बेगुनाह निकलते हैं। जुमर के अबरू तन गए और फारिस के तने आसाब ढीले हुए। हम सब जानते हैं कि आप अल्फाज के हेर फेर से काम ले रहे हैं, वरना ऐसे नहीं होता। वो चटक कर बोली। सादी अपने जूतों को देख रहा था। फारिस ने बेचैनी से पहलू बदला, नागवारी से खिलजी साहब को देखा। जुमर साहिबा, क्या ये दुरुस्त नहीं कि आप प्रोसिक्यूशन ऑफिस में बैठकर दिफा की जानिब से कान बिल्कुल बंद कर लेती हैं और एक दफा किसी को मुजरिम गिरदान लेती हैं तो ये साबित करने के लिए आखिरी हद तक जाती हैं? बगैर वजह या सबूत के किसी को मुजरिम नहीं गिरदारती। चबा चबा कर सुलगती आंखों से उन्हें देखकर बोली। सामने खड़े खिलजी साहब ने इस बात में सिर लाया, फिर अपने हाथ में पकड़े कागजात देखे। क्या ये दुरुस्त है कि वारिस गाजी कत्ल से चंद रोज कबल आपने एक मॉक ट्रायल में हिस्सा लिया था, सरकारे बनाम हैरी पॉटर? और जुमर ने बुरी तरह चौंक कर सामने बैठे सादी को देखा। उसने गर्दन मजीद झुका दी। जुमर की आंखों में बेयकीनी, सदमा, धचका, हर्ष हो रही थी। जी हाँ। वो दोबारा खिलजी साहब की जानिब मुड़ी तो जैसे ढेरों गुस्से को जब्त कर रही थी। इसमें आपने हैरी पॉटर को सेड्रिक गोरी का कातिल साबित करवाया। क्या ये दुरुस्त है? वो एक मॉक ट्रायल था। गुलाबी पड़ती आंखों से वो घुर्राई थी, मगर वो असर लिए बिना कागजात को पढ़ रहे थे। जबकि हैरी पॉटर के चौथे हिस्से में दर्ज इस वाक्य की तफसील के मुताबिक हैरी कातिल नहीं था, वो एक मॉक ट्रायल था। सख्ती से कटहरे का जंगला पकड़े वो जब्त करने की कोशिश कर रही थी। जुमर, मेरा आखिरी सवाल। कागज से चेहरा उठाकर उन्होंने सादगी से पूछा। क्या हैरी को प्रोसिक्यूट करने से कबल आपने वो चौथा हिस्सा पढ़ा था? वो एक मॉक ट्रायल था खिलजी साहब। इसकी आवाज कांपी। इस चौथे हिस्से के मुताबिक हैरी बेगुनाह था या गुनाहगार? और फारिस बेचैनी से सादी की तरफ झुका। वकील को मना करो, इसके साथ यूं ना करे, वो एक औरत है। सादी ने निगाहें उठाकर उसे देखा। इतनी हमदर्दी तो थी, गोली क्यों मारी? फारिस ने जवाबन गुस्से से उसे घूरा। क्या नहीं मारी थी? तो अगर कोई ये साबित करने की कोशिश कर रहा है तो करने दें। और फिर से कदमों में देखने लगा। वो तुम्हारी फुप्पो हैं, उसने गोया मलामत की, और मुझसे ज्यादा मजबूत हैं, सह लेंगी। और खिलजी साहब कह रहे थे, मैं आपसे एक सादा सी बात पूछ रहा हूँ। हैरी पॉटर की चौथी किताब के तहत हैरी पॉटर, जिसको आपने सजा दिलवाई थी, गुनाहगार था या बेगुनाह? लब बिचे जुमर ने सुर्ख होती आंखें खिलजी साहब पे जमाई। चंद लम्हे मुंतजिर सी खामोश छाई रही। बेगुनाह, एक लफ्ज बोला। जज ने कलम से कागज पे कुछ नोट किया। खिलजी साहब, दैट्स ऑल कहते पीछे को हटे, मगर वो इनसे पहले पर्स कंधे पे डालती नीचे उतर आई। सादी के करीब से गुजरने लगी तो इसने सर उठाकर देखा। जुमर ने मलामती काटदार नजर उस पर डाली और आगे चली गई।
یہاں تک کہ وہ کمرہ عدالت سے باہر تھی. کوئی اسے روک کے دکھائے تو اس کی ماں اسے روئے. راہداری میں چلتے ہوئے اس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑ رہا تھا. بار بار وہ کن پٹی مسلتی، سر درد سے پٹ رہا تھا. واپس اپنے آفس آئی اور اندر جو بھی بیٹھا تھا اس کو باہر جاؤ فوراً کہہ کر بھیجا اور کرسی پہ گر گئی. آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی، سر درد الگ. پتہ نہیں کتنی دیر وہ ادھر بیٹھی رہی. پھر پرس اور چابیاں اٹھا کر باہر نکلی. راہداری میں ابھی آگے آئی ہی تھی کہ سامنے سے 2 اہلکار ہتھکڑی لگے فارس کو لے کر آ رہے تھے. اس کے ہاتھوں سے بندی زنجیریں سپاہیوں کے ہاتھوں سے جوڑی تھی. سماعت ختم ہو چکی تھی. اسے قریب آتا دیکھ کر وہ رکا، گردن تیچے کر کے سپاہی کو دیکھا. نظر اسلام، تمہاری بیوی کا نام رخسانہ ہے، 4 بچے ہیں تمہارے، سیٹل آؤٹ ٹاؤن کے پاس گھر ہے تمہارا. اگر تم نے مجھے پروسیکیوٹر سے بات کرنے سے روکا تو یاد رکھنا جس دن چھوٹوں گا سب سے پہلے تمہارے گھر جاؤں گا. ایک کاٹدار نظر اہلکار پہ ڈالی جو بے بسی سے خوش لبوں پہ زبان پھیر کر رہ گیا. وہ چلتی ہوئی قریب آ رہی تھی. اسے دیکھا تو رخ پھیر کر نکلنے لگی. مگر آپ نے کہا آپ میرے ساتھ کھڑی ہوں گی، میری وکیل بنیں گی. زمر رکی، چوک کر اسے دیکھا. وہ وسط راہداری میں ہتھکڑیوں میں کھڑا بہت ضبط سے اسے دیکھتے کہہ رہا تھا، اس ریکارڈنگ میں آپ نے کہا آپ میرا ساتھ دیں گی، حالانکہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نے وارث کو مارا ہے. وہ چند قدم مزید قریب آیا. دونوں اہلکار ساتھ کھنچ آئے. راہداری میں سے گزرتے لوگ رک کر دیکھنے لگے. زمر لب بیچے کھڑی اسے دیکھتی رہی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانس تیز ہو رہی تھی. وہ 2 قدم مزید آگے آیا. انہیں غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا، بھائی کو مارا تو خیر تھی، بات سننے کو تیار تھی آپ، مگر آپ کو مارا تو اصول بدل گئے. ہاں؟ وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھے گئی. پہلو میں گرے ہاتھ سے پرس کو زور سے بیچا. ضبط سے ضبط تھا، عجیب ضبط سا ضبط تھا. آپ نے کہا ادھر کٹہرے میں ہتھکڑی والے ہاتھ سے کمرہ عدالت کی سمت اشارہ کر کے، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا. سچ کہا، مگر آپ کوئی نہیں تھی، آپ زمر تھی. انگلی اٹھا کر پیچھے ہٹتے اس نے غصے اور درد سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا. آپ سے کم از کم آپ سے مجھے امید تھی کہ آپ مجھے سنیں گی، مگر آپ نے سب سے پہلے میری امید توڑی. اور وہ پیچھے ہٹتا گیا. میں بے گناہ تھا میڈم زمر، میں بے گناہ تھا. غصے کی جگہ ان آنکھوں میں دکھ بھر آیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا. یہاں تک کہ وہ لوگ اسے لیے مڑ گئے، مگر اس کی آنکھیں وہ ہر جگہ نقش تھیں. زمر نے ادھر ادھر دیکھا. ہر رک کر اس دیکھتے شخص کو اس کے اوپر وہی آنکھیں چسپا تھیں. وہ تیز تیز چلتی دوسری سمت بڑھنے لگی. اس کا سانس اب بھی بے ترتیب تھا اور آنکھوں کا گلابی بن بڑھتا جا رہا تھا. گھر آ کر اس نے ابا صداقت کسی سے کوئی بات نہیں کی، کھانا بھی نہیں کھایا، کمرے میں بند ہو گئی، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ بھی نہیں لی گئی. بستر پہ چت لیٹی چھت کو دیکھتی رہی. پھر شام کو ڈھلے اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور کچھ فائلز کو پڑھتی رہی. رات دیر تک اس کے کمرے کا یہی منظر رہا. کب سر فائل پہ رکھے وہ سو گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا. کیا گزرتی ہے بھری دنیا میں تنہا شخص پر، ایک لمحے کے لیے خود سے بچھڑ کر سوچنا. رات کا دوسرا پہر تھا شاید. جب اس کی آنکھ کھلی وہ ایک دم اٹھ بیٹھی. کمرے میں اندھیرا تھا. لیمپ جانے کب بجھ گیا تھا، شاید بجلی چلی گئی تھی. وہ بال لپیٹتی اٹھی، بتی جلائی. UPS نے کمرہ روشن کر دیا. وہ قدم قدم چلتی شیلف تک آ رکی. وہاں سیاہ جلد والی موٹی موٹی قانون کی کتابیں رکھی تھیں. زمر نے ہاتھ اٹھا کر ان کو چھوا. آنکھوں میں کرب ابھرا. پھر وہ مزید دائیں جانب آئی. یہاں الماری تھی. اس نے پٹ کھولا. جوتوں والے خانے میں ایک ڈبہ رکھا تھا جس میں چند ایک تراشے اور کاغذ پڑے تھے. یہ 2.5 سال قبل اس نے جمع کیے تھے، پھر چھوڑ دیے تھے. یہ تکلیف دیتے تھے اور وہ تکلیف سے بچنا چاہتی تھی، پھر بھی بچ نہیں پاتی تھی. مگر جو تکلیف، ہتک، ذلت آج اٹھانی پڑی تھی بھری عدالت میں، اس نے ڈبے کو چھوئے بنا الماری بند کر دی اور باہر نکل آئی. گھر ویران، اندھیرا پڑا تھا اور سرد بھی. وہ باہر لان میں آ گئی. برآمدے کے اسٹیپ پہ بیٹھی، ایک گال گھٹنوں پہ رکھ کے دور گھاس اور پودوں کو تکتی خاموش بیٹھی رہی. لمحے چپ چاپ کٹتے رہے، پھسلتے رہے، یہاں تک کہ فجر اترنے لگی. تب زمر اٹھی اور لان کے کنارے تک آئی. یہاں پودوں کو پانی دینے کے لیے ٹوٹی لگی تھی. اس نے وہی کھولی، ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کیا اور وہیں گھاس پہ کھڑے نماز کی نیت باندھ لی. آخری سجدے کے بعد اتحیات پڑھ لیا اور سلام پھیرا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر پھر گرا دیے. چپ چاپ سجدے کی جگہ گھاس کو دیکھتی رہی، اس پہ انگلی پھیرتی رہی. سخت سردی میں بغیر سویٹر کے وہ کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی. وہ رات اس حوالاتی کوٹھی میں بھی آنکھوں میں کاٹی گئی تھی. وہ ذرا سا کونا جہاں برآمدے کی بتی کی مدھم روشنی گرتی تھی، آج فارس ادھر نہیں لیٹا تھا. وہ دوسری دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا، اکڑو سر دیوار سے ٹکائے، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے دور سلاخوں کے پار دیکھ رہا تھا. باہر اب فجر ابھی تک تازہ تھی. پہرے دار ٹہل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. چند کوٹھڑیوں میں سے آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی.
अहमर जमाई लेता आंखें मसलता उठ बैठा, फिर इधर उधर देखा। गाजी भाई उधर क्यों बैठे हैं, सोए नहीं क्या? वो बाहर देखता रहा, यकीनन वो कुछ सोच रहा था। अहमर लबों पे हाथ रखकर जमाई रोकता सीधा होकर बैठा। फारिस इससे चंद कदम ही दूर था। क्या बात है, नमाज नहीं पढ़ी? पढ़ ली। इस नमाज का क्या फायदा जिसके आखिर में कोई दुआ ही ना मांगी जाए? 4 सजदे किए और उठ गया, फिर खुद ही हंसा। मगर जब फारिस ने कहके का जवाब नहीं दिया तो वो चुप हो गया। बुरे हालों में लग रहे हो आप? वो आंखें झपका कर और से उसे देखने लगा, फिर करीब खिसक आया। क्या सोच रहे हो? अपने प्रेजेंट राइट्स के बारे में। खिलाफ मामूल फारिस बेजार नहीं हुआ, हल्की सी नफी में गर्दन हिलाई। फिर क्या चुड़ैल के बारे में? कल कोर्ट में पेश हुई थी ना? फारिस ने इस बात में सिर हिलाया। आपने बताया ही नहीं कल से कि क्या हुआ? क्या उसने वही कहा जो पहले कह चुकी थी, या कुछ नया था उसमें? सब पुराना था। तो इतने अपसेट क्यों हो? अदालत ने 9 महीने के बाद की तारीख दी है, तकलीफ से कहते उसने गर्दन फेर कर अहमर को देखा, जिसके लब ओ में सुकड़े। 9 महीने स्टेपनी, 9 महीने में एक पेशी का इंतजार नहीं कर सकता। मगर आज तो सब कुछ आपके हक में गया था ना? मुझे भी यही लगा, शादी को भी। मगर जब जज ने अगली तारीख दी तो मेरे वकील ने भांप लिया कि जज बिक चुका है। थकान से कहते उसने आंखों के दरमियान की हड्डी मसली। इतने महीने के इंतजार, हब्स की इतनी रातें, मगर इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। अहमर ने गर्दन फेर कर रोशनी वाले कोना देखा जो आज खाली पड़ा था। मुझे भी लंबी तारीख मिल गई है, वो थोड़ी देर बाद मुंह बसूरे बोला तो फारिस ने चौंक कर उसे देखा। मगर तुम्हारा वकील तो हाशिम है। हाशिम अपने वालिद के मजबूर करने पे मेरे लिए कोशिश कर रहा था, मगर उसे अंदर से मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। शुरू में उसने यूं जाहिर किया कि बस मैं रिहा हुआ कि हुआ, मगर अब तक औरंगजेब कारदार मुझे भूलने लगे हैं। पहली दफा वो बेफिक्र और लापरवाह नहीं लगा था, अब जैसे उसे वाकई फिक्र होने लगी थी, मगर वो इसे छुपाने की सही कर रहा था। फारिस ने कर्ब से सर झटका। फिर अब आप क्या करेंगे? तुम क्या करोगे? बल्कि वो एकदम अहमर को देखने लगा। बल्कि हम क्या करेंगे? तो वो जो हनूज उदास बैठा था चौका पे पीछे को हटा। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मशकूक अंदाज में उसे घूरा। फारिस कुछ कहे बिना इसको देखता रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अहमर ने जल्दी से हाथ उठा दिए। मैं वो नहीं करने वाला जो आप सोच रहे हैं। मेरे पास एक प्लान है स्टेपनी, अगर तुम सुनना चाहो तो। बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अदालत पे यकीन रखें बस। बिगड़ कर कहता वो ऊपर लेट गया। फारिस उसे देख रहा था। उसने घबराकर करवट भी बदल ली। बाहर फजर में एक वीरान सुबह की रोशनी घुलती गई। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।